Uh, Very good evening, one and all. From today onwards, you will be listening to an eminent personality in the field of Ayurveda, known to the world, not only to the India, known to the world. A very good friend of mine, a elder brother, guide, teacher, mentor, what not you can name, the one and only Vaidya Abhijit Saraf. Dynamic personality in the field of Ayurveda who is uplifting Ayurveda through its actual tradition and actual rendition. The rendition, why I said is, it is the word used in the concerts of music. How beautifully the music is rendered like that. But this Ayurveda is having its own essence with all its possibilities in all the angles of science or whatever it is. So Ayurveda is using all 64 vidyas, Chatushashti Vidya, and that is how you can achieve everything. And that is what is my elder brother and the person about whom, from whom you will be listening is Vaidya Abhijit Saraf, who is disciple of Vaidya Anant Bhagavant Dharmadhikari sir, ex-director of Ayurveda to the state of Maharashtra. And presently Abhijit Saraf sir is working as professor and PG guide in the Department of Samhita Siddhant at Nasik Ayurved Mahavidyalaya. Sir has completed his UG from Nashik, PG from Pune, PhD from Pune, and he's trained in what not Shastra, Brahmi Lipi, all older lipis which are not known with the name also. In all that he has been trained, and he's still continuing his learning. Vidya never ends that we are end with the study. It always a continuous process, and the live example is Vaidya Abhijit Saraf. I'm very happy to have him. He has completed more than 140 Nirupan of Charak Samhita and other lectures. And I am associated with him. It's my fortune. And today, if I am speaking something on Charak Samhita, it is because of his great advice and suggestions given at right time during all my sessions. I'm very thankful to Vaidya Abhijit Saraf for being a part and parcel in my life and guiding me throughout my career, my profession, and my personal life also. I welcome Abhijit Saraf sir to the platform of Tadvidya Sambhasha, where Siddhi Tattva Avabodha is going on. Starting from the selection of name to the event, we keep discussing and then we plan. So that is what is Abhijit Saraf sir. So I'm welcoming you, sir, with wholehearted, extended hand and aspiration to listen to you more and more on Charaka. And Siddhistan would flourish and nourish not only in the form of chikitsa but the core concepts. If we know the concept, the chikitsa becomes very easy. So I request Abhijit sir to take over the platform and start with his session on fourth chapter of Siddhistan of Charak Samhita. With you will enjoy the course of session with his lecture. Please stay tuned. Don't leave the group. Stay at the proper network and don't disturb yourself by any means while listening to the lecture. Thank you. Again, I welcome you, Abhijit sir. Welcome to you all. So please unmute. Unmute kara. नमो नमः ब्रह्मरक्षाश्च देवेश भरद्वाज पुनर्वसु उताश प्रभृतिभ्यो नमो नमः सहस्राक्षं गणाधीशं स्वं च सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं च शास्त्रादौ प्रणमाम्यहम् अत्र उपस्थितानां सर्वेषाम् अहं सुस्वागतं करोमि अभिवादनं च करोमि अत्र अस्मिन् समारम्भे चरकसंहितायाः सिद्धिस्थानस्य शब्दानुगामी अध्ययनं करणार्थं वयं सर्वे अत्र सम्मिलिताः अहं सर्वेषां पुनश्च एकवारम् अभिवादनं करोमि तथा अग्रे मम व्याख्यानम् अहं हिंदी भाषायां प्रकटीकरोमि। हिंदी भाषा में मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ इसलिए मैं हिंदी का ही प्रयोग करूंगा। ओके सौरभ जी चलेगा ना? Definitely, sir. Definitely. No issue. In between, please use English. There are some international delegates, one or two international delegates. They know Oh, Hindi. They are basically NRIs.
Little bit English here and there where the concepts are to be clear. Please use a little Sure. English to clarify for them also. Okay, one person is saying that I don't know Hindi. Okay, I can speak in English. Okay. Yeah, yeah. I Okay. will try to speak in English. I'm not so Yeah. much comfortable in English language because we can speak in English, but derivation of some concepts of Ayurveda in English language is not possible. So I suggest those who cannot speak the English, cannot understand the Hindi or regional language, at least please learn Sanskrit so that we can speak in Sanskrit language also. So I will try to speak in English. Please be with me. Please forgive me if I made any grammatical mistake. So thank you very much for introducing me. I want to just say that I'm not so much caliber of what Saurabh is speaking. Is its love about me that he is speaking so much about me? I'm just a student of Charak Samhita and nothing else. I'm trying to elaborate Charak Samhita to myself also and trying to radiate what I learned to others so that everyone can learn Charak Samhita and understand Charak and Sushruta Samhitas also. So that is only my karma, and rest is just a bhautik thing. It is clear. Today we will study Chaturtha Adhyaya chapter of Charak Samhita Siddhisthan. Its name is Sneha Vyapatsi. So during the course of first three chapters, Dr. Saurabh has elaborated many things related to the Shodhana, Basti Upakrama, Vaman Upakrama, Viren Upakrama. So I will not repeat it. I will just go through what text is saying. We will read and understand a word by word. Word by word reading will be there. And if you have any question, you can ask me after my session. So we will start. अतः स्नेह व्यापक व्याख्या इतिहास भगवान आत्रेय. Now we will understand the Sneha Basti Vyapad chapter as what Bhagavan Atreya has delivered us. So in the last chapter, some Anuvasana Bastis are described, like Bilvadi, Bilva Tailadi, etc. So the detailed derivation and detailed explanation of a Sneha Basti and its Vyapada, means the side effects of side effects of Anuvasana Basti, of misconduction of Anuvasana Basti will be explained here. So I will use the word Vyapada. You should be know about Vyapada. So first shloka, Sneha Basti Nibodha Iman Vata Pitta Kapapahan Mithya Pranihitanam Cha Vyapadaha Sachikisaka. So this is the Adhikarana of this chapter. Adhikarana means what subject is going to describe here, and what regarding what the Granthakara is about to discuss. I want to explain, I want to clear that this chapter is written by Drudabala, not by Charak and not by Agnivesha. Both this one is written by Drudabala. It is Drudabala Samprita Thana. So he tried to cooperate the language and the way of writing with the Charak and Agnivesha pattern, and he is successful in that. That's why still this Samhita is after to us, after the Sampurna also. So this is the Adhikarana of this chapter. What is Adhikarana? So Sneha Basti Nibodha, the Vidhi of Sneha Basti, how we can perform Sneha Basti, and the Basti, how what are Basti Sneha Bastis, which are Tridoshahar. Sneha Basti, I don't know. Okay, so video was disturbing us. Thank you. So I will repeat again. The first shloka is a Adhikarana of this chapter. Adhikarana means what subject is going to describe here. So Tridoshahara was Sneha Basti. So Sneha Basti is not only eliminate or cure the only Vayu Vata Vyadhi,
but it is a tridosha hara. It will clear the vitiation of all the three doshas. And mithya pranihitanam cha use a snehvasti in wrong way, then the Vyapada will be there. So we have to discuss about Vyapada and their treatment also. So now they are describing some 3 to 4 Anuvasana or Snehvastis which are effective in Tridosha Janya Vyadhi Avastha or some kind of diseases. And these are like below. So now the shlok number 4 to 7, there is a Dashamuladi Anuvasan Basti. So I will read the sutra first and then we will discuss. दशमूलम बलाम रासनाम अश्वगंधाम पुनर्नवाम गुरुच्च एरंड भूतिक भारगी वृषक रोहिषम शतावरीम सहचरम काकनासाम परांशिकम यवमाश अतसी कोल कुलत्थान प्रसृतों इमान तो प्रसृतों मितान. तो this is the ingredients of Dashamuladi Anuvasan Basti. The ingredients are as follows: Dashamul, Bala, Rasna, Ashwagandha, Punarnava, Guduchi, Eranda, Bhutika means Ajamoda, Bharangi, Vrushaka means Vasa, Rohisha, Shatavari, Sahachara and Kakanasa. These all should be there in one pala. The praman should be in one pala. Yavamasha, Atasi, Kol and Kulatha should be in each one prasruta. Then Chaturudrone, Ambasaha Paktva, Drona Sheshena Tenacha. So these all ingredients should be boiled in Chaturudrona. Chaturudrona means 4 drona. Drona is a praman which is described in Kalpasthana chapter number 12. And drona means the shloka number is 95. Kausam Chaturguno Dronam, Charamanam Nalavanam Tata Chatat. So Chaturguna, Char Kaunsa is equal to 1 drone, and 1 Kaunsa is equal to 8 Prastha. So 8 into 4, 32 Prastha is 1 drone. So 32 into 4 is Chaturudrona. Water should be there. And in Chaturudrona Pramana water, all the ingredients should be boiled. The quats should be prepared. And Drona Sheshena. So 1 drone should be Shesha there. Tailadakam Samakshiram Jivaniyehi Palonmitaihi. 1 Adaka Taila. So what is Adaka? Adaka is again a Praman which is described in Kalpasthan chapter number 12, Sutra number 1 Adaka means 94 number Sutra. Chatuprastha is 1 Adak. So 4 Prastha is 1 Adak. So that Praman of the Taila. Samakshiram. So Shira is also used in 1 Adak. Jivaniyahi Palonmitai. And 1 Pala in 1 Pala Praman of Jivaniya Gana. With all this should be incorporated with the squat. And then Anuvasanam Etaddi. And the Anuvasam Basta should be performed with this Kalpa. Then Sarva Vata Vikarnut. It is effective in all kind of Swatantra and Paratantra Vata Vikar. The next line, Anupanam Vasa Tadvat Jivaniya Upasadita. So Tadvat means the above the Dashamuladi ingredients should be used with Anupavasa and then Jivaniya Gana, and then the Vasa should be formed, Vasa Kalpa should be formed. And if it is used as an Anuvasam Basti, then it is also Sarva Vatahara Anuvasan Kalpa. So there are 2 Kalpas, Dashamuladi Anuvasan Basti and Dashamuladi Anuvasana Vasa Kalpa. So those 2 Bastis are effective in all kind of Vata Vikar. Next shlok, Shatamva Yava Bilva Amlaihi Siddham Tailam Samirane Saindavena Agritaptena Taptam Cha Anilat Udgrutam. So there are 2 kalpas in each line. So first is Shatamva, Yava, Bilva and Amla. Amla means kanji should be used, and then the tail should be siddha, tail should be prepared. It is used in, and if you use as a basti, then Vata Shamana will be there. It is effective in all kind of Vata Vyadhi. Next is you should be, the Sendao should be heated
and with his heating the ghruta should be boiled, and then that boiled means the koshna ghruta, not so much boiled, kinchit koshna ghruta should be prepared as anuvasan, then it will be effective in vataja avastha. Now shlok number 9 to 12. Jivanti madanam medam shravani madukam balam shatam va rushabako krishnam kakanasam shatavarim स्वगुप्ताम क्षीर काकोलिम कर्कटाख्याम शटीम वचाम विश्वा तैलम घृतम क्षीरे साधयेत चतुर्गुणे. So the ingredients are Jivanti, Madan, Madan Phala, Meda, Shravani. Shravani means Gorakhmundi, Maduka, Bala, Shatamva, Rushabaka, Krishna means Pimpri, Kakanasa, Shatavari, Swagupta, Shira Kakuli, Karkatakhya, Shati, Vacha. These all ingredients, unka kalka karke, Tailam, Ghrutam, Kshire Sadhaye. So now the kalka should be, if in one praman, the tail and घृत should be into 4. मीन्स एक प्रमाण अगर एक समान मात्रा में कल्क है तो उनसे चतुर्गुण हमें तैल और घृत लेने हैं, एंड into 4 क्षीर शुड बी देयर, और घृत तैल के प्रमाण से चतुर्गुण दुग्ध लेने हैं, और फिर साधय चतुर्गुणे, एंड उसको सिद्धि करना है, उसका कल्प बनाना है. ब्रूहणम वात, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस बस्ती? ब्रूहणम वातक फगदम बल शुक्र अग्निवर्धनम मूत्र रेतो रजो दोषान हरे तद अनुवासनम. If you use these ingredients, this kalpa as anuvasan basti, then it will be bruhan, vataka pittagna, balavardhanam, shukravardhanam, agnivardhanam, mutra dosh, reto dosh, and rajo dosh will be eliminated. This anuvasan will be effective in these conditions. Labhatah, now the next kalpa, labhatah chandanadesh पिष्टै क्षीर चतुर्गुणम तैलपादम घृतम सिद्धम पित्तग्नम अनुवासनम. So Chandanadi kalpa, which is described in Jora Chikitsadhyay, the kalpa should be in one praman, then kshira should be chaturguna, 4 into 4. The kshira should be used, dugdha should be used, and tailapadam, 1/4 is a taila, should be there. Ghrutam siddham, ghruta and taila should be 1/4. And after the preparation of the Ghruta Taila Siddhi, that is Yamaka, it is used as called as a Yamaka, means 2 snehas are there. Then it is and used as a Anuvasan Basti, in Anuvasan Basti, then it is should be Pittagna. It is used in all kind of Pitta Vikar. So Sutra number 4 to 7 and 8, it is there are 4 Anuvasan Bastis used in a Vataja Avastha. In shlok number 9 to 12, there are 2 anuvasan bastis which is used in a pittaja avastha. Now next, Saindhavam madanam kushtam, shatamvam nichulam vacham, riveram madukam bharangi, devadaru sakatphalam, nagaram pushkaram meda, chavikam chitrakam shatim, vidanga ativishe shamam, harenum nilikam sthiram, bilva ajamode krushnam cha, dantim rasnam cha peshayet. So the kalka ingredients of kalka are Saindhavadi ingredients are there. Saindhav, Madan, Kushta, Shatamva. Nichula means Jalavetas. Vacha, Riber, Maduk, Bharangi, Devdaru, Katfal, Nagar means Shunti, Pushkar, Meda, Chavika, Chitrak, Shati, Vidanga, Ativisha, Shama means Trivrut, Harenu, Nilika, Sthira, Bilva, Ajamoda, Krishna means Pimpri, Danti and Dasna. That kalka should be prepared with these ingredients. The kalka should be, if the kalka should be in one praman, then sadhyam erandajan tailam, tailam va kafaroganud. So eranda tel should be prepared. How? The kalka should be, if kalka is in one praman, then eranda tel chaturguna होना चाहिए. अगर प्रमाण एक है तो चतुर्गुण एरंड तेल और उससे 16 गुण, मतलब चतुर्गुण में जल लेना है और एरंडा तेल सिद्ध करना है. ये तेल, दिस तेल सिद्ध तैल is effective in kapha roganud, kafacha, all kind of kafacha vyadhi avastha. Bradna udavarta gulma arsha, pliha meha adya marutan, anaham ashmarim chaiva, anyat tad anuvasanat. If you use this taila as an anuvasan basti, then bradnadi avastha should be eliminated.
मदनैर्व नेक्स्ट अनुवासन इज मदनैर्व अम्ल संयुतैः बिल्वाद्येन गणेन वा तैलं कफहरैर्वापि कफग्नं कल्पयेत् भिषक्. So next kalpa is madana kalpa and amla dravya means kanji adi amla dravya. It should be prepared as a kalpa. Siddha kalpa, siddha taila should be there, and then we will use as a anuvasam basti. It will be kafan shamak. Then next third kalpa is bilvadi gana, which is described in previous chapters, and that should be prepared in their own kwath. The Tikakar is saying that बिल्वादो गणः दशमूलम चात्र क्वाथ कल्काभ्यम अपि देयम. So kalka should be of dashamul and kwath of dashamul. It should be prepared, and then then siddha sneha should be prepared. Then it is used in anuvasam basti. Then it is used in all kind of kafaja vyadi avastha. So there are three bastis in kafaja avastha. The next anuvasana is explained as a vidangadi anuvasana basti. विडंग एरंड रजनी पटोल त्रिफलामृता जाति प्रवाल निर्गुंडी दशमूल आकुपर्णिका निंब पाठा सहचर शंपाक कर वीरकाः एषां क्वाथेन विपचे तैलमेभि कल्कितैः. So the kalka dravya are ingredients are vidangari dravya. All are very well known, so I need not to explain what kalpas are there, dravyas are there. So you should be prepared kwath of these dravyas, and then taila should be prepared with the using of taila siddhi kalpana. Then phala bilva trivrut krishna rasa bhunimba darubihi saptaparna vacha ushira darvi kushta kalingakaihi lata gauri. Lata means manjishtha and gauri means haridra. Shatamva agni means chitraka. Shati means kachora. Choraka pushkaraihi. These are the prakshepa dravyas. So the kalpa taila should be prepared, vidangadi taila should be prepared, and if it is used in an anuvasan basti, it is effective as tat kushtani krimin mehan arshansi grahani gadam klibatam vishamagnittvam malam doshatarayam tatha प्रयुक्तम प्रणोद अति आशु पानाभ्यंग अनुवासन ही. इस विडंग तेल का आपने अभ्यंतर पान, अभ्यंग और अनुवासन इस पद्धति से अगर उपयोग किया तो सभी प्रकार के कुष्ठ, कृमि, मेह, अर्श, ग्रहणी गद, क्लिबता मीन्स नपुंसकत्व, विषमाग्नित्व, मलम दोषत्रयम सभी प्रकार के दोषों के विकार, मलों के विकार, ये सभी नष्ट हो जाते हैं. इट शुड बी एलिमिनेटेड. What is the effect of this Vidangari Taila Anuvasan Basti? It is described in Shlok number 23 and 24. Vyadhi Vyayama Karma Adva Shina Abala Nirojasam Shina Shukrasya Cha Ativa Sneha Bastir Bala Pradaha. This Sneha Basti is used in Vyadhi Kshina. If a person is Kshina because of Vyadhi, व्याधि के कारण कोई व्यक्ति क्षीण हुआ है, धातुओं का क्षय हुआ है, तो उसमें आप ये स्नेह बस दे सकते हो. व्यायाम क्षीण, धातु क्षीणत्व बिकॉज ऑफ व्यायाम. बिकॉज ऑफ कर्म क्षीण, कर्म मीन्स पंचकर्म, पंचकर्म के विकृत पद्धति से उपयोग से अगर कोई क्षीण होता है तो उसमें अधो क्षीण, ज्यादा पैदल चलने से कोई क्षीण हो गया है. और अबल मीन्स बलरहास, दौर्बल्य उत्पन्न हुआ है. और निरोजसाम ओजक्षय हुआ है. और क्षीण शुक्रस्य शुक्रक्षय है, तो उसमें ये स्नेह बस्ती अतीव बल, अतीव योग्य है, अतीव बलप्रद है. और क्या करता है? पादजंगा उरु पृष्ठांश अंश कटीनाम स्थिरताम पराम जनयेत अप्रजानाम च प्रजाम स्त्रीणाम तथा नृणाम. तो पाद, जंघा, उरु, पृष्ठ, अंशी, अंश, कटीनाम स्थिरताम पराम, ये सभी जो अवयव है उनमें स्थैर्य उत्पन्न करता है. और जनयेत अप्रजानाम च प्रजाम स्त्रीणाम नृणाम तथा, स्त्री और पुरुषों में जिनमें अपत्य नहीं है, इनफर्टिलिटी है, उनमें ये प्रजा उत्पन्न करता है. इनफर्टिलिटी को दूर करके ये आप उपयोग उसका कर सकते हो. लेकिन अब यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि इनफर्टिलिटी के
जो कॉजेस है वी शुड बी एलिमिनेट और क्यूअर्ड द कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी फर्स्ट, देन ओनली तैल अनुवासन बस्ती. Direct, if you are directly using the Taila Vidangadi Taila Anuvasam Basti, then Ama Pradosh will be there. So first we have to cure the hetus of infertility, then only in Niramavastha we can use this Anuvasan. In Samavastha we cannot use this Anuvasan Basti. So till now we have learned or they are described some kind of Anuvasan Bastis for different Vyadhi Avasthas. Now they are describing the Mithya Yoga of Anuvasan Basti and Vyapada of Anuvasan Basti. So the shloka number 25, Vata Pitta Kafatyanya Urushaihi Avrutasya cha Abhukte cha Pranitasya Sneha Baste Shad Apada. There are 6 Vyapadas of Sneha Bastis, misconducted Sneha Bastis, and these are Vatavruta, Pittavruta, Kapavruta, Ati Annavruta, Urushavruta Sneha. Miss Sneha is Avruta because of Vayu, because of Pitta, because of Shleshma, because of Ati Anna, and because of Purisha. And 6th is Abhukte Pranita. If the basti is performed in क्या कहते हैं खाली पेट में, अगर वो आपने दिया तो उसमें अभुक्त प्रणीत ऐसा उसका व्यापद उत्पन्न हो सकता है. अब एक एक का वर्णन कर रहे हैं. शीतो अल्पो, आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब exactly the meaning in English, so please, I am very much sorry. If you are not comfortable, I will not take the next sessions, as I am not able to describe these terms or these kalpanas or these siddhantas in English. I am really very very sorry. I will be speak in Hindi, and in between I will speak English to explain what exactly they are speaking. So शीतो अल्पो व अधिके वाते पित्ते अत्युष्णः कफे मृदुः अति भुक्ते गुरुः वर्चः संचये अल्पबल तथा. तो इसका अन्वय हमें किस पद्धति से लगाना है? इस श्लोक को अगर समझना है तो इसका पहले हमें अन्वय समझना पड़ेगा. अन्वय ऐसा है, शीतो अल्पो व अधिके वाते. वायु अगर अधिक है, वायु अगर विषयटेड है, वायु बलवान है, वायु की विकृति है, तो उसमें शीत बस्ती या अल्प मात्रा में बस्ती दी गई तो वो विकृति निर्माण करेगी. पित्ते अत्युष्ण, पित्तज अवस्था में अति उष्ण बस्ती दी गई तो वो भी विकृत करेगी. कफे मृदु, तीसरी अवस्था, कफज अवस्था में अगर मृदु बस्ती, अल्प बलवान बस्ती दी गई तो वो भी विकृति करेगी. अति भुक्ते गुरु, अति भुक्त है, ज्यादा मात्रा में अन्न सेवन किया है, और गुरु बस्ती दी गई. गुरु का अर्थ है यहाँ पे गुरुत्व युक्त, जिनके द्रव्य गुरु है, पचन करने के लिए ज्यादा है, पचन करने के ज्यादा समय लगता है, उसको गुरु अन्न कहते हैं. तो इन द्रव्यों से युक्त बस्ती दे दी. वर्चस संचय मतलब पुरुष संचय है, निरोह नहीं दिया गया है, पुरुष निर्हरण नहीं किया है, और उसमें अगर स्नेह बस्ती दी गई और वो भी अल्प बलवान दी गई तो वो भी कुछ काम के लिए उससे व्यापद उत्पन्न होने वाले हैं. दत्तः तैहि आवृतः स्नेहो न याति अभिभवादपि. उससे क्या होता है? ऐसी अवस्था में, मतलब वातज अवस्था में अल्प और शीत बस्ती दी गई, पित्तज अवस्था में उष्ण बस्ती दी गई, कफज अवस्था में मृदु बस्ती दी गई, अतिभुक्त अवस्था में गुरु बस्ती दी गई, और वर्च पुरुष संचय अवस्था में अल्प बलवान बस्ती दी गई, तो उससे स्नेह आवृत हो जाता है. स्नेह आवृत होने के कारण वो बाहर नहीं निकलता और कई प्रकार के व्यापद उत्पन्न कर देता है और उसका अभिभव हो जाता है. अभुक्ते अनावृतत्वाच्च याति ऊर्ध्वम तस्य लक्षणम. और छठी अवस्था जो है उसमें अभुक्त अनावृतत्वात्, बिना खाली पेट, मतलब बिना अन्न खाया हुआ खाली पेट अगर अन्न बस्ती दी गई, स्नेह बस्ती दी गई, तो वो ऊर्ध्वगमन उसका हो जाता है. ये आपको नियम पता है, जैसे कल सौरभ जी ने भी आपको बताया होगा कि अगर अनुवासन बस्ती देनी है, स्नेह बस्ती देनी है, तो आपको खाने के बाद देनी है. कुछ अल्प आहार खाने के बाद ही स्नेह बस्ती का प्रयोग करना है. खाली पेट
स्नेह बस्ती का कभी भी प्रयोग नहीं करना है, उससे व्यापद उत्पन्न होता है। अब उसके लक्षण क्या क्या है वो क्रमशः बता रहे हैं। पहला वातावृत बस्ती का लक्षण बता रहे हैं। अंगमर्द ज्वर आत्मान शीतस्तंभ उरुपीडनैः पार्श्वरूप वेष्टनैः विद्यात् स्नेहम वातावृतम विषक। स्नेह अगर वातावृत हो गया उसके कारण क्या है, वातज अवस्था में शीत बस्ती दी गई या अल्प मात्रा में बस्ती दी गई तो वातावृत स्नेह हो जाता है। उससे व्यापद क्या क्या होते हैं, अंगमर्द होगा, ज्वर होगा, आदमान होगा। आदमान ये एकदेशीय शोथ में आता है। आदमान मतलब केवल पेट में गुड़गुड़ा आवाज होना, ऐसा नहीं है। पेट में गुड़गुड़ा आवाज आती है उसको आटोप कहते हैं। आदमान का अर्थ वहां पे उदर में एक देशीय शोध उत्पन्न होकर वायु वहीं पे संचर्य अवस्था में रहता है, उसको आत्मान कहते हैं। शीत स्तंभ उरुपीड नहीं, शरीर में शीत स्तंभ होना, ठंडी लगकर शरीर स्तब्ध होना, उरुपीड नहीं उरुस्तंभ होना, पार्श्व रूप पार्श्व प्रदेश ऊर्जा, और पार्श्व वेष्ट नहीं पार्श्व प्रदेश, पार्श्व मतलब बोथ लैटरल रीजन ऑफ आवर बॉडी। तो पार्श्व मतलब लैटरल प्रदेश में वेदना और वेष्टन मतलब पीड़न की तरह वेदना उत्पन्न होना, ये वातावृत स्नेह के लक्षण है। अब उसकी चिकित्सा क्या है, तो स्निग्ध अम्ल लवण उष्ण ही तम रास्ना पितद्रुतैलिक तवीरक सुराकोल कुलत्थ यवसाधित निरोहिर निर्हरेत सम्यक समुत्रैर पांचमूलिक। क्या चिकित्सा करनी है, गोमूत्र और पंचमूलक के क्वाथ के साथ रासना पीतद्रु तैलिक, रासना और पीतद्रु का तैल सिद्ध करना है, और वो स्निग्ध अम्ल लवण उष्ण इस गुण का होना चाहिए। उसके साथ दूसरा कल्प है सौवीरक सुरा कोल कुलत्थ और यव, इनसे गोमूत्र पंचमूल सिद्ध करके उसका अगर निरोध देना चाहिए। तो स्नेह बस्ती के व्यापक में चिकित्सा क्या करनी है, निरोह चिकित्सा करनी है। और निरोह होने के बाद, निरोह से स्नेह बाहर निकल जाने के बाद ताभ्याम एवच तैलाभ्याम सायं भुक्ते अनुवासे, तो रास्तादी तैल और पीतद्रु तैल, इससे सायंकाल में फिर अनुवासन, फिर से अनुवासन बस देनी है। इससे क्या होगा, वातावृत जो स्नेह है उससे व्यापक ठीक हो जाएंगे। मतलब पहले क्या करना है, आपने अनुवासन दिया, वातज अवस्था में अल्प और शीत अनुवासन की मिथ्या प्रयोग से वातावृत स्नेह हो गया, उसके अंगम लक्षण दिखाई देने लगे। तो आपको क्या करना है, तुरंत सुबह या उसी समय में रासना पीतद्रु तैल से या सुरा सौवीरक आदि से गौमूत्र पंचमूल सिद्ध करके उसमें से जो योग्य कल्प है उससे आपको एक निरोह देना है। और निरोह से स्नेह बाहर आ जाने के बाद सायंकाल में फिर से रासना तेल या पीतद्रु तेल से अनुवासन बस्ती देनी है। अब नेक्स्ट पित्तज अवस्था का बता रहे, पित्तावृत स्नेह बता रहे। दाह राग तृषा मोह तमक ज्वर दूषण विद्या पित्तावृत्तम स्वादु तिक्तहितम बस्ती विधरे। अगर पित्तज अवस्था में उष्ण द्रव्यों के बस्ती दी गई, अति उष्ण बस्ती दी गई, तो उससे सर्व शरीर में दाह, राग मतलब सर्व शरीर लाल रंग का हो जाना, तृष्णा, मोह, तमक मतलब आंखों के सामने अंधेरा छाना, ज्वर ये उत्पन्न होते हैं। ये पित्तावृत स्नेह के लक्षण है। इसकी चिकित्सा स्वादु और तिक्त द्रव्यों से निरोह बस्ती देनी है। अब आगे शेषमावृत स्नेह का लक्षण बता रहे। तंद्रा शीत ज्वर आलस्य प्रसेक अरुचि गौरवैः सम्मूर्छा ग्लानिभिः विद्यात् श्लेष्मणा स्नेहम आवृतम। क्या क्या होता है, अगर कफज अवस्था में मृदु बस्ती, अल्प बलवान बस्ती दी गई तो उससे क्या होगा, तंद्रा शीत ज्वर मतलब ठंडी लगकर बुखार आना, आलस्य प्रसेक अरुचि गौरव शरीर गौरव उत्पन्न होना, मूर्छा ग्लानि ये लक्षण उत्पन्न होंगे। फिर आपको समझना है लक्षण अगर उत्पन्न हो जाएंगे तो कि श्लेष्मा से आवृत स्नेह हो गया है, वो बाहर नहीं निकल रहा है। तो उसमें क्या करना है, कषाय तीक्ष्णोष्ण सुरा गोमूत्र उपसादित फल तैल युत सामल बस्ती भी तम विनिर्हरे। तो आपको कषाय कटु तीक्ष्ण उष्ण, कषाय रस कटुरस तीक्ष्ण गुण के उष्ण गुण के द्रव्यों से सुरा गोमूत्र साधित ऐसे फल तैल मदन फल तैल का युक्त ऐसी निरोध देना है, या फिर स अम्ल बस्ती आम्ल द्रव्यों से उसको निरोध देकर बाहर निकलना है।
अब श्लोक नंबर 34, छर्दी मूर्छा अरुचि ग्लानी शूल निद्रा अंग मर्दनैहि आमलिंगैहि सदा स्तव विद्यात अति अशनावृतम। अगर बहुत खाना खाया है, ज्यादा मात्रा में खाना मतलब कुक्षी का जो भाग रखना है शेष वो न होते, अति मात्रा में गुरु आहार सेवन किया है और ऐसे समय में अगर बस्ती दी गई तो क्या होगा? छर्दी उल्टी वॉमिटिंग हो जाएगी, मूर्छा आ जाएगी, अरुचि ग्लानी शूल निद्रा अंग, निद्रा यहाँ पे प्राकृत नहीं है, मतलब नींद लग जाएगी, ग्लानी आ जाएगी, रुग्ण सो जाएगा और ये निद्रा प्राकृत नहीं है। अंग मर्दन ही अंग मर्द उत्पन्न हो जाएगा और आमलिंग ही सदा है, दाह के साथ आम लक्षण दिखाई देंगे। आम के लक्षण क्या है? स्रोतोरोध बल भ्रंश गौरवानिल मूर्ता आलस्यापक्ति निष्ठिव मल संगा रुचि क्रमही, ये सभी आम के लक्षण है। ये आम के लक्षण, और आपको आम के लक्षण चाहिए और तो आपको चरक संहिता के सूत्र स्थान के 16वें अध्याय में जो बहुदोष लक्षण है वही आम के लक्षण है, वो आपको वहां पे मिलेंगे या ग्रहणी में भी दिखाई देंगे। तो उस दाह के साथ है, ये अति अशन अवृत अन्न के अवरुद्ध ये स्नेह बस्ती है। इसमें चिकित्सा क्या करनी है? तो कटूनाम लवणानाम च क्वाथे चूर्णश्च पाचनम विरेको मृदु अत्र आम विहिता च क्रियाहिता। 3 प्रकार की चिकित्सा करने के लिए बताया है। कटु द्रव्यों से और लवण युक्त द्रव्यों के क्वाथ और चूर्ण बनाकर उसका पाचन करना चाहिए, अभ्यंतर सेवन करना है, या फिर मृदु विरेचन देना है, मृदु विरेचन देना चाहिए वहां पे, या फिर आम विहिता क्रिया। अब आम विहित क्रिया क्या है? आमग्न चिकित्सा कहां वर्णन की है? तो वो चरक संहिता के विमान स्थान के 2य अध्याय में है। मतलब एक तो सद्योवमन देना है या लंघन देना है या पाचन करना है, और लंघन से ही ये सब ठीक हो जाएगा। तो ये आम विहिता चिकित्सा है, वो आप चरक संहिता के विमान स्थान के 2य अध्याय के 13 नंबर के श्लोक में आपको वो चिकित्सा मिल जाएगी। आगे विण मूत्र अनिल संग अर्ति गुरुत्वाद अदमान रुद्ध गहि स्नेहम विडावृतम ज्ञात्वा स्वेद स्नेह स्वेदे सवर्ति भी। अब क्या है? अगला 5वां जो व्यापद है वो पुरुषावृत, मतलब पुरुष है, अति मात्रा में पुरुष वहां पे अवस्थित है और उसका निरहरण नहीं हुआ है, और अगर आपने स्नेह बस्ती दी गई तो उससे मल मूत्र वायु का संग होगा, वेदना होगी बहुत मात्रा में, गुरुत्वात आत्मान रुद्र और गुरुत्व होगा, मतलब शरीर गौरव उत्पन्न हो जाएगा, आत्मान होगा, हृदय प्रदेशी उरप प्रदेशी ग्रह उत्पन्न जखराट उत्पन्न हो जाएगी, और ये इसको फिर पुरुषावृत स्नेह है, ये लक्षणों से जानना चाहिए। चिकित्सा क्या है? स्नेह स्वदेश वर्ती भी ही, मतलब स्नेह शोधन करके उसमें वर्ती फलवर्ती देनी चाहिए, सपोजिटरी का उपयोग करना चाहिए। श्यामा बिल्वादि सिद्धैश्च निरूहै स अनुवासनैहि निर्हरेत विधिना सम्यक उदावर्त हरेण। या श्यामा बिल्वादि जो द्रव्य है जिनका वर्णन चरक संहिता के कल्पस्थान के प्रथम अध्याय के 6 नंबर के सूत्र में किया है। श्यामा बिल्वादि जो द्रव्य है उनसे सिद्ध निरूह और उसी से सिद्ध स्नेह सिद्ध करके फिर अनुवासन, मतलब पहले निरूह दीजिए और शाम को अनुवासन दीजिए। और उदावर्त की चिकित्सा जो चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 26 चैप्टर में जो उदावर्त चिकित्सा वर्णन की है, फिर बाद में वो चिकित्सा करनी है। मतलब पहले स्नेहन स्वेदन स्थानिक स्नेहन स्थानिक स्वेदन करके वर्ती करना है, फिर निरोध देना है, उसके बाद अनुवासन देना है और फिर उदावर्त की चिकित्सा करनी है। ये वहां पे उपयोग में चिकित्सा उपयोगी होती है। अब अंतिम 6 नंबर का जो व्यापद है वो है अभुक्ते शून्य अपायो वा वेगात स्नेहो अति पीड़िता धावती ऊर्ध्वम तथा कंठा ऊर्ध्वेभ्य खेभ्य एति अपि। 3 कारण है। एक तो अभुक्त अवस्था में दिया है, स्नेह बस्ती दी है, बिना कुछ खाए स्नेह बस्ती दी है। दूसरा शून्य पायो, शून्य पायो, पायु मतलब गुद, गुद ये मल से रहित है, इतना निरोध दिया है कि सब पूरा मलाशय रिक्त हो चुका है, ऐसी अवस्था में अगर स्नेह बस्ती दी है। और तीसरा वेगात, अति वेग से अगर स्नेह बस्ती दी गई तो वो धावती ऊर्ध्वम, वो ऊर्ध्व प्रदेश में आती है और कंठ तक आती है, और ऊर्ध्व प्रदेश में वो जो स्रोतस है उनमें व्याप्त हो जाती है। उसमें चिकित्सा क्या करनी है? तो मूत्र श्यामा त्रिवृत सिद्धो यवकोल कुलत्थवान तत्सिद्ध तैल इष्टो अत्र निरुहा सानुवासना। तो इसमें
गोमूत्र श्यामा त्रिवृत इनसे सिद्ध जो यवकोल कुलत्थ युक्त ऐसा जो तेल है उससे पहले क्वाथ सिद्ध करके निरो दीजिए और फिर तैल सिद्ध करके अनुवासन दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग एनी माई एक्सपीरियंस हियर राइट नाउ टिल नाउ बिकॉज वी हैव टू फर्स्ट रीड द वर्ड टेक्स्ट as it is, word by word. Then we will discuss about some experiences. Okay. So I will share my experiences. But first, we will read whole text, whole chapter, word by word, so that we will understand the whole concept. Okay. So श्लोक number 40. कंठात आगच्छतः स्तंभ कंठग्रह विरेचनैः छर्दिग्निभिः क्रियाभिः तस्य कार्यम निवर्तनम। अब क्या होता है कि यहाँ पे क्रियापद है आगच्छतः, कंठात आगच्छतः। अगर कंठ में बस्ती का द्रव्य आने लगे, आपको उसका गले में रुल्लास होने लगे, तो उसी दौरान तुरंत स्तंभ करना चाहिए, स्तंभन चिकित्सा करनी है, कंठग्रह चिकित्सा करनी है और विरेचन चिकित्सा करनी है। तो स्तंभ कैसे करेंगे? टीकाकार कहते हैं स्तंभ व्यजन शीत जल से एकादिना, ठंडा वारा ठंडी वायु से या ठंडे जल से छिड़कना, इससे वो स्तंभ होगा। कंठग्रह ये कंठ पीड़न करके मतलब गला थोड़ा सा गले को थोड़ा रुकावट करके वो जो उत्क्लेश हो रहा है वो रुकाना है। और छर्दिग्नि चिकित्सा जो छर्दी की चिकित्सा है, जो छर्दी चिकित्सा अध्याय में दी गई है उसको वहां पे प्रयुक्त करना है, इससे ये व्यापक ठीक हो जाएगा। आगे का श्लोक। अब ये विषय यहाँ पे पूरा हो गया। अब और कुछ विषय जो स्नेह बस्ती से संबंधित है उसका वर्णन वो कर रहे हैं। यस्य न ये सूत्र आगे का बहुत महत्व का है। दिस श्लोक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्लोक नंबर 41 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है श्लोक? यस्य न उपद्रवम कुर्यात् स्नेह बस्ती ही अनिसृता सर्वो अल्पो व आवृतो रौक्षात् उपेक्षा स विजानता। अगर पूरी की पूरी बस्ती या अल्प मात्रा में बस्ती वापिस नहीं आ गई, आपने स्नेह बस्ती दी गई पर उसका प्रत्यागमन नहीं हुआ, स्नेह बस्ती ही अनिसृता मतलब पूरी की पूरी वापस नहीं आई या अल्प मात्रा में ही वापस आ गई, तो क्या होता है? और अगर कोई उपद्रव भी नहीं है, यस्य न उपद्रवम मतलब स्नेह बस्ती वापस नहीं, प्रत्यागमन नहीं हुआ और उपद्रव भी नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं। इसकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि रौक्षात अतिरूक्षता के कारण ये रुक्ष गुण का वायु उस स्नेह को वहीं पे पचा डालता है। इट इज डाइजेस्टेड ऑलरेडी इन इंटेस्टाइन। सो इफ इट इज नॉट कम मतलब उसका प्रत्यागमन नहीं हुआ तो डरने की बात नहीं है। अगर उपद्रव नहीं है तो, अगर उपद्रव है जो ऊपर बताए 6 उपद्रव है तो उसकी चिकित्सा यथा उपद्रव करनी है। अगर वापिस आने के बाद भी उपद्रव कोई नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, उसकी उपेक्षा ही चिकित्सा है। अभी स्नेह बस्ती के साथ क्या क्या करना है? तो युक्त स्नेहम द्रवोष्णम च लघुपथ्य उपसेवनम भुक्तवान मात्रया भुज्यम अनुवास्य त्रया। तो अनुवासन चिकित्सा करते समय स्नेह युक्त द्रव उष्ण गुण के लघु पथ्य आहार विहार का सेवन करना चाहिए। जो भी आहार आप सेवन करोगे अनुवासन बस्ती के समय में, तो वो द्रव उष्ण लघु और स्निग्ध गुण का होना चाहिए। और भुक्तवान मात्रया भोज्यम, जो भोजन करना है वो योग्य मात्रा में सेवन करना है। ये पथ्य सेवन करते समय हर 3 दिन के बाद अनुवासन देना है। कब तक देना है? जब तक सम्यक स्नेह नहीं हो रहा है। ये कंटिन्यूस देना नहीं है, हर 3 दिन के बाद एक अनुवासन देना है जब तक सम्यक स्नेहन के लक्षण दिखाई नहीं देते। उसके साथ धान्य नागर सिद्धम ही तोयम दद्दत विचक्षणाः व्युषिताय निशाम कल्यम उष्णम व केवलम जलम। अनुवासन बस्ती देने के बाद, सायंकाल को कुछ खाने के बाद अनुवासन बस्ती देने के बाद दूसरे दिन, कल्य मतलब प्रातः काल, नेक्स्ट मॉर्निंग, इन द नेक्स्ट मॉर्निंग व्युषिताय निशाम
रात्रि पूरा जाने के बाद, निशा खत्म होने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह धान्य नागर सिद्धम, धान्य और शुंठी सिद्ध जल पिलाना है, या केवलम जलम, केवल उष्ण जल देना है। उष्ण जल या धान्य नागर सिद्ध जल उसको पिलाना है। क्यों पिलाना है, उसका कारण आगे बताते हैं। स्नेहात् जीर्णम जरयति श्लेष्माणम तद विनत्ति च मारुतस्य अनुलोम्यम च कुर्यात् उष्णोदकम नृणाम। यह जल क्या करता है, गर्म पानी क्या करता है, तो स्नेह का जो अजीर्ण हो गया है उसको जीर्ण करता है, उसको पचा डालता है। श्लेष्मा के जो बंधन निर्माण हुए हैं मस्ती के कारण, वो बंधन तोड़ देता है, उसको श्लेष्मा को पचा देता है, और वायु को अपनी गति से चलाता है, वायु को अनुलोमन कर देता है। इसलिए आगे का सूत्र और महत्व का है। वमने च विरेके च निरुहे सानुवासने तस्मात् उष्णोदकम देयम वात श्लेष्मा उपशांतये। इसलिए वमन के समय, विरेचन के समय, निरोह देते समय, अनुवासन देते समय आपको वायु और श्लेष्मा के शमन के लिए सदैव उष्णोदक का ही परिपालन करना चाहिए। हर चीज के लिए, मतलब गुद प्रक्षालन, स्नान, मुख धावन, परिषेक, सभी के लिए आपको उष्णोदक का ही उपयोग करना है। अब और कुछ घटक बता रहे हैं। रूक्ष नित्यस्तु दीप्ताग्निर व्यायामी मारुतामयी वंशण श्रोणी उदावृत्त वातारह दिने दिने। अभी क्या बताया कि हर 3-3 दिन के बाद आपको बस्ती देनी है, लेकिन कुछ अवस्थाएं ऐसी है, देर आर सम काइंड ऑफ situations where we have to perform अनुवासन बस्ती every day। प्रतिदिन अनुवासन बस्ती देनी पड़ती है। ऐसी कौन सी अवस्था है? पहली है रुक्ष नित्य, जो ज्यादा रुक्ष है या रुक्ष आहार विहार करते हैं, रोज ड्राइविंग करते हैं, ट्रक ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं, रोज रुक्ष आहार विहार का सेवन करते हैं। दीप्ता, जिनका अग्नि अति दीप्त है। व्यायामी, नित्य व्यायाम करते हैं, रोज एसी में व्यायाम करते हैं, 4-4 घंटे व्यायाम करते हैं। मारुतामयी, जिनको नित्य वातव्याधि होते रहते हैं। वंशण श्रोणी अर्ह आवृत वातः, वंशण श्रोणी में वातव्याधि है, और उदावृत्त वातः, और वायु का उदावृत्त हुआ है। ऐसी अवस्था में दिने दिने अर्हा, रोज प्रतिदिन, एवरी डे वी हैव टू परफॉर्म स्नेह बस्ती। क्या होता है? एशाम च आशु जराम स्नेहो याति अंबुसिकता स्विव। जैसे बालू में कोई रेती है, उसमें जल डाल दिया तो जल जल्दी सूख जाता है, उसी प्रकार से इन अवस्था में जितना भी आप है उसका तुरंत पचन हो जाता है। इसलिए इन व्यक्तियों में हर दिन, एवरीडे आपको स्नेह बस्ती देनी है। अतो अन्य शाम, इन अवस्थाओं को छोड़कर बाकी सभी लोगों में त्रयात् प्राया स्नेहम पचति पावकः, हर 3-3 दिन में स्नेह देना है, क्योंकि उस स्नेह का पचन करने के लिए अग्नि को 3 दिन लगते हैं। इसलिए इन रुक्ष नित्य, दीप्ताग्नि, व्यायामी, मारुतामयी आदि अवस्था को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों में आपको हर 3-3 दिन के बाद अनुवासन या स्नेह बस्ती देनी है। अब कुछ और नियम बता रहे हैं, ये आगे के सूत्र और इंपॉर्टेंट दे रहा। दिस 2 सूत्र आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे? न तो आमम प्रणयेत तैलम स्नेहम, कभी भी स्नेह आम देना नहीं है, मतलब बिना उबाले देना नहीं है, इसको सिद्ध करके ही देना है। केवल स्नेह, केवल तैल, केवल घृत का पालन स्नेह बस्ती देनी नहीं है, उसको द्रव्यों से सिद्ध करके ही देना है। क्या होगा? सही अभिषंदे गुदम, वो गुद प्रदेशी आर्द्रता उत्पन्न करेगा, गुद प्रदेशी क्लेद उत्पन्न करेगा, गुदस्राव शुरू हो जाएगा। स अवशेषम च कुर्वीत, जब बस्ती आप देंगे तो बस्ती के जो पॉट है, जो बस्ती यंत्र है, उसमें कुछ स्नेह शेष होना चाहिए। बस्ती नेत्र में भी कुछ द्रव्य शेष होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वायु, बस्ती यंत्र का वायु भी अंदर जाएगा और उपद्रव निर्माण करेगा। न च एवं गुदकंठाभ्याम दद्या स्नेहम अनंतरम, एक ही साथ गुद भागे से और मुख भाग से स्नेह देना नहीं है। एक ही समय में अभ्यंतर स्नेहपान मुख मार्ग से और गुद भाग से अनुवासन या स्नेह बस्ती,
ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। स्नेह बस्ती चल रही है तो मुख मार्ग से स्नेहपान बंद करना है। अगर मुख से स्नेहपान चल रहा है तो स्नेह बस्ती नहीं लेनी है। क्यों ऐसा करना है? उभयस्मात् समम गच्छन् वातम अग्निम दूषयेत्। इफ यू यूज अभ्यंतर स्नेहपान एंड स्नेह बस्ती विथ ईच अदर, देन वायु एंड अग्नि विशेषण विल बी देयर। वात प्रकोप हो जाएगा और अग्नि भी दुष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी स्नेहपान और स्नेह बस्ती इसका एक साथ उपयोग कभी भी नहीं करना है। अब आगे श्लोक नंबर 50 और 51। स्नेह बस्ती निरुहम वा न एकम अतिशीलये। कभी भी एक और नियम बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। कभी भी स्नेह बस्ती या निरूह इनका लगातार प्रयोग नहीं करना है। कंटिन्यूअस स्नेह बस्ती फॉर 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज और कंटिन्यूअस निरूह फॉर 30 डेज, 20 डेज, ऐसा कभी नहीं करना है। क्या करना है? उत्क्लेश अग्निवदो स्नेहात निरुहात पवनात भयम। इफ यू यूज स्नेह बस्ती फॉर लॉन्ग पीरियड कंटिन्यूअसली, देन उत्क्लेश, दोषों का उत्क्लेश होगा और अग्निवध, अग्नि नष्ट हो जाएगा। और इफ यू यूज द निरोह बस्ती कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग, देन वात प्रकोप विल बी देयर, विशेषण ऑफ वायु विल बी देयर। इसलिए तस्मात् निरूढ़ संस्नेह्यो निरुयश्च अनुवासितः। इसलिए निरूह बस्ती दी है तो बाद में अनुवासन देना ही चाहिए, और अनुवासन दिया है तो निरूह देना ही चाहिए। स्नेह शोधन युक्त एवं बस्ती कर्म त्रिदोषनुत। स्नेहन और निरूह ऐसे बस्तियों का अनुवर्तन करके एक दूसरे के बाद देने के बाद ये जो बस्ती कर्म है ये तीनों दोषों को शांत करता है, तीनों दोषों की विकृति नष्ट करता है। यहां शोधन शब्द ये निरूह के लिए आया है। अब आगे मात्रा बस्ती का वर्णन शुरू हो रहा है। नाउ दे आर डिस्क्राइबिंग अबाउट मात्रा, व्हाट इज द मात्रा बस्ती। तो कर्म व्यायाम भार अध्व यान स्त्री कर्षितेषु च दुर्बले वात भग्ने च मात्रा बस्ती सदा सदा मतः। सदा मीन्स दैनंदिन, यू कैन गिव मात्रा बस्ती एवरी डे। देयर इज नो रूल फॉर मात्रा बस्ती लाइक स्नेहपान एंड अनुवासन और निरूह। तो मात्रा बस्ती आप रोज दे सकते हो। जो व्यक्ति कर्म कर्षित है, कर्म मतलब कंदुक चालना, जो दैनंदिन कर्म कर रहे हैं, अध्वकर्षित है या न कर्षित, ज्यादा प्रवास कर रहा है, बार बार जर्नी हो रही है, कंटिन्यूसली वात प्रकोप का कारण हो रहा है, स्त्री कर्षितेषु नित्य मैथुन हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में दुर्बल, जो दुर्बल व्यक्ति है, और वात भग्न, जिसको वात विकार उत्पन्न हुए हैं, ऐसे यह भग से पीड़ित व्यक्ति के लिए है। टीका में दिया है वात भग्ने इति वातेन पीड़िते, वायु से जो पीड़ित है ऐसे व्यक्ति को रोज मात्रा बस्ती आप दे सकते हो। यथा इष्ट आहार चेष्टस्य सर्वकालम निरत्ययाः। मात्रा बस्ती के सेवन करते समय, मात्रा बस्ती का उपयोग करते समय आपको जो चाहिए वो आहार विहार आप कर सकते हो, इसको कोई परहेज नहीं है। देयर इज नो सच काइंड ऑफ रूल्स लाइक स्नेह बस्ती एंड अनुवासम बस्ती एंड निरोह बस्ती। सर्वकालम, यू कैन गिव इट एनी टाइम in day, night, after food, without food, you can give it any time. And niratyayaha, there is no side effect of matra basti. रस्वायाः स्नेह मात्रायाः मात्रा बस्ती समो मतः। स्नेह बस्ती की जितनी मात्रा है, रस्व मात्रा जो है उसके समान, मतलब 6 तोला ये मात्रा है रस्व बस्ती की। और काल का तरह देखेंगे तो अर्ध अपरिणाम, आधे दिन में जो पचती है उसको रस्व मात्रा कहते हैं। तो उतनी ही मात्रा बस्ती की भी है। इसलिए स्नेह का प्रमाण कम होने से ज्यादा व्यापद नहीं उत्पन्न होते। स्नेह का प्रमाण कम है इसमें, इसलिए स्नेह के व्यापद कम उत्पन्न हो या होते ही नहीं है। बल्यम सुखोपचर्यम च
सुखम सृष्ट पुरुषकृत स्नेह मात्रा विधानम ही ब्रूहणम वातरोगनुत। तो उसके उपयोग क्या है? तो ये बल्य है, शरीर में बल देगा, अग्नि को बल देगा, शरीर को बल देगा, दोषों को बल देगा। सुखोपचर्यम, देने के लिए सुखकर है, कभी भी दे सकते हैं, कुछ रूल्स नहीं है, रूल रेगुलेशंस नहीं है, कुछ नियम नहीं है। सुखम सृष्ट मुरित पुरुषकृत, पुरुष सुखपूर्वक निकल जाता है बाहर मात्रा बस्ती से। और ब्रूहणम, शरीर का ब्रूहण होता है। और वात रोगन, वायु के सभी रोग शांत करता है। ये स्नेह मात्रा का विधान है, बस्ती का मात्रा बस्ती का विधान है। अब अंतिम श्लोक इस अध्याय का, तत्र श्लोकौ वातादीनां क्षमायोक्ता प्रवरा स्नेह बस्तयाः तेषां च अन्य प्रयुक्तानां व्यापदा स चिकित्सतः प्राग्भोज्यं स्नेह बस्तेः यद ध्रुवम ये अर्हास्त्रहास्त्रहाश्चये स्नेह बस्ती विधिष्टोक्ता मात्रा बस्ती विधिस्ततः। इस अध्याय में क्या क्या बताया है, अधिकरण क्या क्या है इस अध्याय के, व्हाट आर द सब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। पहला है वातादीनाम क्षमाय उक्ता प्रवरा स्नेह बस्तयाः, वातादि दोषों के शमन के लिए जो उत्तम स्नेह बस्ती बताई है उनके वर्णन है। वायु के लिए 4 बस्ती बताए हैं, पित्त के लिए 2 बस्ती बताए हैं, श्लेष्मा के लिए 3 बताए हैं, और एक विडंग अनुवासन तैल बताया है। यह उत्तम स्नेह बस्ती है। लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति ने अन्य प्रयुक्त गलत पद्धति से, गलत ढंग से अगर किसी व्यक्ति ने इन स्नेह बस्ती का उपयोग किया तो उसके जो व्यापद होंगे, 6 प्रकार के व्यापद है, वातावृत, पित्तावृत, कफावृत, अति अन्नावृत, पुरुषावृत और अभुक्त प्रणीत, ऐसे 6 व्यापद उत्पन्न होते हैं। उनके चिकित्सा के साथ उनका वर्णन किया। प्राग्भोज्यम स्नेह बस्तेश्च, स्नेह बस्ती के पहले क्या क्या खाना है और उसके साथ परहेज भी क्या क्या करना है वो भी बताया। यद ध्रुवम ये अर्हम, रोज रोज किसको बस्ती देनी है, और त्रहत त्रहत चाहिए, और 3-3 दिन के बाद बस्ती किसको देनी है उसका वर्णन किया। स्नेह बस्ती विधि शोक्ता, स्नेह बस्ती की विधि बताई, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए कि स्नेह निरोह एक साथ एक के दूसरे के बाद देने हैं, कभी भी कंटिन्यूस स्नेह कंटिन्यू निरोह देना नहीं है, एक ही समय में स्नेहपान और स्नेह बस्ती देने नहीं है, ऐसे विधि बताया है। और मात्रा विधि, मात्रा बस्ती का विधि बताया है कि मात्रा बस्ती क्या है, उसकी विधि क्या है, किस प्रकार से दे सकते हैं। तो इति अग्निवेश कुरुते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते अप्राप्ते दृढ़बल संपूरिते सिद्धि स्थाने स्नेह बस्ती व्यापक सिद्धि नाम चतुर्थो अध्याय। तो ये अग्निवेश ने निर्माण किया हुआ, चरक ने संस्कारित किया हुआ ऐसा जो अग्निवेश तंत्र था, उसका अप्राप्त, जो प्राप्त नहीं था, ऐसे सिद्धि स्थान को दृढ़बल ने संपूरित किया। उसमें से स्नेह व्यापक सिद्धि नाम का जो अध्याय है उसका हमने विवरण यहाँ पे किया। दिस इज द वर्ड टू वर्ड स्टडी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ आई विल शेयर सम ऑफ माय एक्सपीरियंसेस। आज तक के मेरे अनुभव में मेरे पास जितने सारे वात व्याधि के पेशेंट आए उसमें से केवल 2 रुग्ण ऐसे थे कि जो शुद्ध वातज थे, स्वतंत्र वात प्रकोप के थे। तो उनमें मैंने स्नेह बस्ती का उपयोग तुरंत किया है। अन्यथा बाकी के जो वात व्याधि होते हैं उनमें पहले हेतु का चिकित्सा करके फिर आपको स्नेह बस्ती का उपयोग करना पड़ता है। फर्स्ट यू हैव टू क्योर द हेतुज एंड देन यू हैव टू परफॉर्म द स्नेह बस्तीज। स्नेह बस्ती देने के लिए बहुत आसान लगती है, लेकिन उतना ही ख्याल बहुत रखना पड़ता है। अगर ये ख्याल ठीक से नहीं रखा गया तो स्नेह बस्ती के बहुत सारे व्यापद उत्पन्न हो सकते हैं, जिनका वर्णन इस अध्याय में किया है। और मात्रा बस्ती का मैं बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग करता हूं, कई रुग्णों में मैंने किया है। मात्रा बस्ती बहुत उपयुक्त है, विशेषतः जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट होते हैं उनमें मात्रा बस्ती की शुरुआत, पहले हेतु दूर करो, फिर आम पाचन करो, दोषों का शमन करो, सामावस्था दूर करो, निरमावस्था आने के बाद अगर स्नेह बस्ती दी गई तो वो बहुत उपयुक्त है। अगर इतना समय नहीं है तो मात्रा बस्ती देने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो आगे के भी अध्याय में सब हम कुछ चर्चा करेंगे। कुछ आपको प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आंसर मी। आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम नॉट एबल टू डिलीवर माय थॉट्स रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट इन इंग्लिश
I am not so much comfortable in English. I can speak English very well, but for description of Ayurvedic concepts, English is not a proper language. According to me, maybe I am wrong, maybe मैं गलत हो सकता हूं, पर भारतीय भाषा में ही आयुर्वेद पढ़ाया जा सकता है. जिनको आयुर्वेद सीखना है उन्होंने भारतीय भाषा सीखनी चाहिए. यहाँ पे मैं रुकता हूं. मुझे यहाँ पे बुलाया और कुछ बोलने का बताने का अवसर प्राप्त किया. थैंक यू वेरी मच. वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. थैंकफुल फॉर बीइंग विथ मी. एंड जो लैंग्वेज के प्रॉब्लम हुए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं. धन्यवाद. एक मिनट में प्रश्न पढ़ देखता हूं. हाउ बस्ती हेल्प इन हेपेटोमेगाली एंड स्प्लेनोमेगाली. ओके, देखिए यकृत वृद्धि और प्लीहा वृद्धि ये किस में आते हैं? कोई बताएगा मुझे? किस संप्रप्ति में आते हैं? यस, उधर उधर. थैंक यू हर्षिता, डॉक्टर हर्षिता. ये उदर है. तो उदर की जो प्राथमिक अवस्था होती है उसमें आप पहले उदर के हेतु दूर करो, अग्नि विकृति के हेतु दूर करो, दोष वृद्धि के हेतु दूर करो, और फिर आप उसमें बस्ती दे सकते हो. लेकिन बस्ती देते समय आपको यह ख्याल रखना चाहिए कि इससे बाकी की विकृतियां उत्पन्न न हो. कभी कभी यकृत वृद्धि के पेशेंट में वो बस्ती सहन नहीं कर पाते, इसलिए मात्रा बस्ती आप दे सकते हो. मैंने तो आज तक कभी दी नहीं है ऐसे रुग्णों में. मैंने यकृत वृद्धि और प्लीहा वृद्धि के कई रुग्ण देखे हैं, लेकिन उनमें मैंने बस्ती कभी दी नहीं है. मैंने शमन चिकित्सा ही की है और शमन चिकित्सा से ही उनको ठीक किया है. लेकिन यकृत वृद्धि और प्लीहा वृद्धि की शमन चिकित्सा से ठीक होने के बाद अपुनर्भव के लिए आप उनमें मात्रा बस्ती दे सकते हो. एक प्रश्न आया है कि why does मात्रा बस्ती is any व्यापद free, though this can also lead to some व्यापद as normal अनुवासन बस्ती. नहीं मैडम, अनुवासन बस्ती की मात्रा अलग है और मात्रा बस्ती की मात्रा अलग है. स्नेह बस्ती की जितनी मात्रा है उससे आधी मात्रा अनुवासन बस्ती की होती है. मे बी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. और स्नेह बस्ती की जो रस्व मात्रा होती है उसको मात्रा बस्ती की मात्रा होती है. कम मात्रा है इसलिए उसको मात्रा बस्ती कहते हैं. दूसरा, उसमें स्नेह का प्रमाण कम होने के कारण वो व्यापद ज्यादा मात्रा में उत्पन्न नहीं करते. इसलिए मुझे तो आज तक कभी व्यापद दिखाई नहीं दिए हैं. मात्रा बस्ती के व्यापद मैंने तो देखे नहीं है. हाँ, अनुवासन बस्ती स्नेह बस्ती के व्यापद दिखाई देते हैं, बट अनुवासन बस्ती अलग है, स्नेह बस्ती अलग है और मात्रा बस्ती अलग है. तो मात्रा बस्ती की मात्रा बहुत ही अल्प है. स्नेह 6 तोला ये तो स्नेह बहुत ही कम है, और वो भी शुद्ध स्नेह देना नहीं है, सिद्ध करके देना है स्नेह. इसलिए आप बेहिचकिचाहट किसी भी अवस्था में मात्रा बस्ती दे सकते हो. एक्सक्यूज मी सर, आपने बिल्कुल सही इसका आंसर दिया, लेकिन मेन चीज ये है कि इसको जैसे हम लोग प्रोलॉन्ग देते हैं मात्रावस्थी को, तो भी कभी भी व्यापद नहीं पाए जाते. तो क्या ऐसी अवस्था में कॉन्टिन्यूटी में जब मात्रावस्थी दी जाती है तो बॉडी के अंदर इतना स्टेमिना रहता है कि वो उसको स्नेह को जीर्ण कर पाता है और उसका पाचन कर पाता है, अनलाइक द नॉर्मल बस्ती? तो क्या उस टाइम पे कभी, दो आई हैव आल्सो नॉट कम अक्रॉस विद एनी ऑफ द व्यापद, लेकिन मेरे पास ये हमेशा क्वेश्चन रहता है कि हम लोग देते हैं मात्रावस्थी, तो कहीं किसी टाइम ऐसा भी हो सकता है क्या कि अपचन जैसी स्टेट या कंडीशंस आ सकती हैं? थैंक यू. यस, थैंक यू. बहुत अच्छा प्रश्न है आपका. जो करते हैं प्रैक्टिकली वो ही ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं. ये प्रश्न बहुत सुंदर है. इसका उत्तर ऐसा मैं दूंगा कि मात्रा बस्ती देनी है, रोज दे सकते हैं, पर कितने दिन? साल भर तो नहीं दे सकते. जब तक आपको व्याधि के जो लक्षण है या वातवृद्धि के लक्षण है
या जो आपको अचीव करना है वो जब तक ठीक होता है तब तक ही मात्रा बस्ती देनी है। अगर ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक मात्रा बस्ती भी दी गई तो वो कुछ ना कुछ स्वल्प व्यापद जरूर करेगी। वैद्य की गलती होगी, वैद्य की गलती से व्यापद हो सकता है, पर मात्रा बस्ती से व्यापद नहीं होगा। इसलिए योग्य काल में, योग्य काल तक ही मात्रा बस्ती देनी है। इज इट ओके मैम? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल मैं अब आपके आंसर से बिल्कुल पूर्ण तरह से सहमत हूँ, क्योंकि यही मैं ज्यादा पूछना काल चाह रही तक, थी। जो आपने क्वेश्चन, बिल्कुल आपने जो मेरा डाउट है बिल्कुल सही तरह से पकड़ा कि कितनी क्वांटिटी में हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि एनीवे हाँ ये भी एक प्रकार का स्नेह ही है और ये भी हाँ, अपचन हमें कर ही सकता है। जैसे बोला कर ही जाता है कि सकता है, हाँ। अति सर्वत्र वर्ज्यते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो क्वांटिटी यस, कितनी रखनी है वो एक वैद्य को डिसाइड करना ही पड़ेगा, ये एग्जैक्टली। ब्लाइंडली नहीं हम दे सकते। तो बहुत बहुत थैंक्स सर। और एक मैं बताऊंगा कि कई लोग ऐसा करते हैं कि मात्रा बस्ती कभी भी देनी है तो रात को देते हैं, 9 बजे मात्रा बस्ती देते हैं, 10 बजे मात्रा बस्ती देते हैं, क्योंकि पेशेंट उस समय में आते हैं। तो वो भी कभी कभी तकलीफ दे सकता है। दूसरा, एक ही दिन में दो दो मात्रा बस्ती दी गई, वो भी गलती होगी। कुछ भी व्यापद है तो दो, सुबह दो, शाम को दो, ऐसा नहीं करना है। तो मात्रा बस्ती लगातार भी नहीं देनी है, उसका भी कुछ नियम है। और वो नियम ग्रंथ में क्यों नहीं वर्णन किया है? क्योंकि वो वैद्य ने खुद तय करना है कि इस रुग्ण को मात्रा बस्ती कितनी देनी है। नित्य देना है इसका मतलब हम पूरी उम्र भर, साल, 2 साल, 3 साल देना, ऐसा नहीं है। वो जैसा रोज खाना खाते हैं उस प्रकार से मात्रा बस्ती नहीं लेनी है। जितना हमारा व्याधि की अवस्था है या फिर हमें जो चीज अचीव करनी है वो जब तक होती है तब तक ही देनी है, उसके बाद में फिर वो बंद कर देनी है। आगे का प्रश्न है, मात्रा बस्ती का डोस हर पेशेंट में अलग होगा। एग्जैक्टली हर पेशेंट में अलग होगा, क्योंकि आपको उस पेशेंट के लिए स्नेह बस्ती जो देनी है उसकी मात्रा तय करनी है ओष्ठ के अनुसार, और फिर उसकी सबसे ह्रस्व मात्रा तय करनी है। और अगर ये आपको टालना है तो ग्रंथकार ने आपको प्रमाण करके दिया है कि हर उम्र में कितना स्नेह देना है, वो बताया है ना। हर उम्र में बस्ती का वो वर्णन हो गया होगा आपका। निरोग की मात्रा कितनी होगी, निरोग के बाद स्नेह की मात्रा कितनी होगी, तो उसकी ह्रस्व मात्रा ये स्नेह मात्रा बस्ती की होगी। अगला प्रश्न है, कैन वी यूज घृत मेंशन इन व्याधीज यूज फॉर स्नेह बस्ती अदर देन स्पेसिफिक घृताज मेंशन? इज वेरी गुड क्वेश्चन। यस सर, वी कैन यूज द घृताज मेंशन इन चिकित्सा स्थान which is described as a abhyantar snehapan. We can use that kalpa or sneha basti also. Charak has given us a free hand to use that. They are not adamant to that their rules. They are saying that you can use, you can change the dravyas also. हम द्रव्य भी बदल सकते हैं। समझो किसी द्रव्य में कोई द्रव्य है काकनासा, आज काकनासा नहीं मिल रहा है, तो वातग्न जो आज मिलता है वो हम दे सकते हैं। तो वी कैन गिव घृताज तैल ऑल्सो फॉर स्नेह बस्ती, वी कैन यूज वसा कल्प ऑल्सो, मज्जा कल्प ऑल्सो, वी कैन यूज दैट। अगला प्रश्न है, कैन मात्रा बस्ती बी गिवन इन दोज ओल्डर देन 70 years? यस, वी कैन गिव देम। बिलो मतलब बिलो एज एंड अबव एज भी आपको देना है, पर देते समय रुग्ण के सभी घटकों का विचार पूरा करके ही देना है। आयुर्वेद कभी एकांतिक नहीं है। आपने तीसरा अध्याय पढ़ा अभी, तीसरे अध्याय में आखिरी आखिरी में क्या बताया उन्होंने? क्या है सूत्र? तीसरा नहीं, दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय के 24 से आगे क्या बताया है? उत्पद्यति सा अवस्था दोष कालम बलम प्रदेश काल बलम प्रति यस्याम कार्यम अकार्यम स्यात् कर्मम कार्यम च वर्जितम। और आगे कहते हैं अवस्था प्राप्य निर्दिष्टम, अगर अवस्था उत्पन्न हो गई है तो आपको वो कर्म करना है। इसलिए तस्मात् स्वयं उयम दिया कर कुर्यात, आपने बुद्धि का वापर कर, उपयोग करके आपको तय करना है कि इस अवस्था में क्या करना है। और बिना तर्केण सिद्धि यसा यदृच्छा, तर्क के अलावा आपने कुछ भी किया हो गया तो यदृच्छा है, हर एक पेशेंट में नहीं मिलेगा। इसलिए आपको हर एक पेशेंट में इस पेशेंट की क्या अवस्था है, इसका अग्नि क्या है, इसके दोषों की अवस्था क्या है, इसका बल कितना है, दोषों का बल क्या है, इसका वय की अवस्था क्या है,
इसके सार की अवस्था क्या है, हेतु कौन से है, रुग्ण नव नव है जीर्ण है, रुग्ण सॉरी साम है निराम है, स्वतंत्र है परतंत्र है, दोषों के अंशांश कल्पना क्या है, इस सबका पूरा विचार करके फिर आपको तय करना है कि मैं कौन सा कल्प दूंगा। उसका कल्पना कौन सी होगी, स्नेह कल्पना में तैल कल्पना होगी, घृत कल्पना होगी, वसा कल्पना होगी, यमक होगा, त्रिवृत होगा, महास्नेह होगा, तो सब कुछ आप बस्ती में उपयोग कर सकते हो। इट इज डिपेंडेंट ऑन यू कि आपको फ्री हैंड है, जितना चाहे आप कल्प बना सकते हो, जितने चाहे आप बस्ती के कल्प नए नए बना सकते हो। कुछ कल्प इन्होंने दिए है, वो उदाहरण मात्रा है, बाकी क्या आप कर सकते हो बिल्कुल। और कुछ? सर यहाँ पर जो आवरण की ये जो बात आई है, जैसे अन्न से आवृत होता है, कफ से आवृत हाँ, होता है, तो सर यहाँ आवृत को कैसे समझेंगे एग्जैक्टली? यहाँ आवृत का अर्थ जो स्नेह पर्याप्त मात्रा में कोष्ठ में जाकर उसका कार्य होना अभिप्रेत है स्नेह बस्ती का, वो नहीं होता है। जो हमारी आवरण व्याधि की कल्पना है वो यहाँ पे शब्द नहीं है। जी यहाँ आवृत जी मतलब उसको उसके गति को अवरोध करना। जी जी जी, थैंक यू सर। नितिन जी, अगर कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर हम रुक जाएंगे आज। नहीं है, आगे प्रश्न है, एक मिनट। इन नहीं है, बहुत सारे मैंने देखे नहीं। इन 43rd श्लोका अनुवासन कैन बी गिवन एवरी डे, शुड इट बी गिवन अलॉन्ग विथ निरुआ? कहाँ बताया है? हाँ हाँ हाँ, दिने दिने, यस यस, विद निरुआ, एवरीडे शुड बी गिवन बट विद द निरुआ। बट एवरीडे मतलब कितने दिन तक? साल भर तो नहीं देंगे हम बस्ती। मैक्सिमम कितना समय बताया है? 30 डेज, दैट्स इट। और सुबह निरुआ शाम को अनुवासन, ऐसा ही है। आज निरुआ कल अनुवासन, फिर निरुआ, ऐसा नहीं करना है। सुबह निरुआ शाम को अनुवासन, ये आपने पहले अध्याय में पढ़ा होगा। और मैक्सिमम 30 डेज, उसके बाद नहीं देनी है। इसे दिन रोज देने हैं। पर वो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, थैंक यू डॉक्टर हर्षिता, विथ निरुआ के साथ ही देनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर हाउ कैन वी अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस एंड एक्शन ऑफ अग्नि इन बस्ती चिकित्सा, स्पेशली स्नेह बस्ती? देखिए, अग्नि बस्ती के जो कार्मुकता है, फंक्शनिंग ऑफ द बस्ती है, वो अग्नि के ऊपर ही डिपेंड है। वो स्नेह चाहे मुख मार्ग से लो या गुद मार्ग से लो, उसको पचन करने वाला कौन है? अग्नि ही है। तो बिना अग्नि के एक्शन किए हुए या बिना अग्नि की कार्य से बस्ती कार्य ही नहीं करेगी। नेक्स्ट, प्रैक्टिकली इन एन ओपीडी हाउ विल यू रूल आउट द डूज एंड अनडूज एंड अंशांश कल्पना इन शॉर्ट टाइम? ओके, तो सुबह मेरा लेक्चर इसी के ऊपर हुआ आज। अंशांश कल्पना देखने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं मेरे बारे में बताता हूं। मैं रुग्ण जो मुझे लक्षण बताता है, रुग्ण संवेद लक्षण, वो उस क्रम से लिख लेता हूं। फिर मेरे एग्जामिनेशन में क्या क्या मुझे लक्षण मिलते हैं वो मैं लिख लेता हूं। उसके में दोष, मतलब समझो शिरशूल है तो वायु, अंगमर्द है तो वायु है, पृष्ठशूल है तो वायु है, उत्क्लेश है तो श्लेष्मा पित्त है, कंडु है तो श्लेष्मा है, शरीर गौरव है तो श्लेष्मा है, अति मूत्र प्रवृत्ति है श्लेष्मा है, सदा हो कोई है बर्निंग मिक्चुरेशन है तो पित्त है, अम्लोदगीरण है तो पित्त। ऐसे में दोष लिखता हूं। फिर उसके स्रोतस कौन सा है वो लिखता हूं। फिर उसके गुण कौन से हो सकते हैं, अंशांश, जैसे चेष्टानाश है तो चल गुण का ह्रास है, कंप ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो चल गुण की वृद्धि है। इस प्रकार से मैंने कुछ गणित बिठाया है मेरे मेरे लिए, तो उससे मैं गुण बताता हूं। जैसे देखिए, आपको यह अध्ययन आपके तरह करना है कि जो दोषों के क्षय वृद्धि प्रकोप के लक्षण है, वो सभी लक्षण उस दोष के कौन से गुण से होते हैं। मतलब संस वृद्धि वध स्वाप सादर तोद वेदनम,
ये वायु के प्रकोप के लक्षण है। तो स्रंसर किस गुण से होगा, भ्रंश किस गुण से होगा, साधक किस गुण से होगा, ये आपको तय करना, आपको आपको अध्ययन करना पड़ेगा। पहले मैंने ये किया है, तो आपको अपने लेवल पे ये अध्ययन करना पड़ेगा, फिर वो गणित बैठता है पूरा। और फिर बाद में मैं उस रुग्ण की पूरी दिनचर्या लेता हूं, शॉर्ट टाइम में देता ही नहीं हूं किसी पेशेंट को, कम से कम आधा घंटा हर एक पेशेंट को देता हूं मैं। तो उसकी दिनचर्या क्या है, दिनचर्या मतलब सुबह उठने के बाद दूसरे दिन सुबह उठने तक वो क्या क्या करते हैं, वो डिटेल में मैं लिख लेता हूं। अब देखिए, पहली बार आप ले सकते हो, जब नेक्स्ट विजिट के लिए आएगा तो इतनी दिनचर्या लेने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट विजिट में ही आपको ये पूरा काम करना है। फिर जो दिनचर्या ली है उसमें से हितकर क्या है, अहितकर क्या है, अहितकर के दोष क्या क्या है, उनके गुण निकालिए, और इससे आपको दोषों के अंशांश कल्पना, स्वतंत्र परतंत्रत्व समझ में आएगा। फिर आप ट्रीटमेंट तो बहुत आसान है इसके बाद में। आगे है प्रश्न, सम फिजिशियंस आर ट्रीटिंग हाई फीवर विथ आइस कोल्ड वाटर मात्रा बस्ती, हाउ कैन दिस बी जस्टिफाइड एज दिस हैज बीन नोवेयर एक्सप्लेन। वेरी गुड क्वेश्चन मैम, थैंक यू। आपने प्रश्न पूछा, मैंने तो कभी नहीं दिया है, पर कई लोग प्रयोग करते हैं। कि कैसे है कि हमारे लिए ग्रंथकारों ने खुली छूट दी है कि आप द्रव्य कोई भी उपयोग कर सकते हो। तो जल में स्नेह गुण है, जल ये स्निग्ध ही है, रूक्ष जल ऐसे कोई कल्पना नहीं है, इसलिए ये स्नेह बस्ती के अंडर ही आएगा और मात्रा बस्ती के अंडर ही आएगा। तो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे है शिरा बस्ती मात्रा, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आया। शिरा बस्ती मात्रा मतलब वो तो अलग ही विषय है ना, शिरा बस्ती, वो अभी यहां का विषय ही नहीं है। आगे है शुड वी डेवलप सम असेसमेंट ऑफ क्वेश्चन विथ क्षय एंड वृद्धि। यस, मैंने किया है मेरे क्लिनिक के इस पेपर में। लक्षणों के आधार पर हमें करना है कि ये क्षय है या वृद्धि है, ये करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है, एंड डू वी नीड टू गिव द ड्रिप मेथड और विद ग्लिसरीन सिरिंज। हिज अबाउट क्वेश्चन इज अबाउट शिरबस्ती। आप किसी भी पद्धति से स्नेह बस्ती आप प्राचीन काल की पद्धति से भी दे सकते हो, आधुनिक भी दे सकते हो। क्या कहते हैं, बस्ती के प्रयोग आपको आपको फ्री हैंड है, मैं वही कह रहा हूं। ग्रंथकारों ने आपको फ्री हैंड दिया है, आपको जो करना है आप आपकी सिर्फ उसके लिए लॉजिक आपको बताना जरूरी है। अब रक्त बस्ती भी देते हैं, रक्त बस्ती की भी मात्रा बस्ती देते हैं, इट इज डिस्क्राइब इन ग्रंथ। इसलिए तो वायु में शीत बस्ती आए ना, तो जो आप आइस कोल्ड आइस का जो बस्ती बता रहे हैं, वो अति शीत बस्ती जो वायु में है, तो वातज अवस्था में नहीं देना है, बाकी के पित्तज आदि अवस्था में आप दे सकते हो। ज्वर की अवस्था है ना, तो उसमें दे सकते हो आप, लेकिन ज्वर वातज होगा तो नहीं देनी है। ठीक है, हो गए प्रश्न। थैंक यू डॉक्टर त्यागी मैम, थैंक यू वेरी मच। रुकेंगे।